أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I welcome you all in the online session of electronic circuit design. Hope you all are fine and having good health. In last session, we have discussed about the numerical in BJT amplifier of upper cutoff frequency, upper critical cutoff frequency. So we again continue after the numerical. In the previous numerical, we have discussed the given data, putting all the values in the given formula and extract all the kind of these values. And at the end, we put the R in total that we have calculate in the above scenarios and also find the C in total, the total input capacitance, putting all the values in the given formula and get the upper critical cutoff input frequency that is 1.62 megahertz and place in the equivalent circuit as you can see here. Now move on to the today's session, and before that this is the related problem and also this is one of the part of question of assignment 2 that already given to you guys. This is also part of that numerical, which means you again calculate this numerical with this data. The document of assignment 2 with the given numerical already given to you with our official WhatsApp group. Hopefully there is no kind of query up till now in your mind. And if you have any kind of query, please feel free to discuss. I will clear all the kind of queries, question which is in your mind. Okay. Now today's uh, topic is again a numerical. This is second and next assignment 2 question which we are discussing now. Determine the upper critical frequency of the amplifier and given 10-11. As you can see, the figure is shown in this 10-37 figure. Due to its output RC circuit. I think my voice is clear to you and my screen also appear to you. Is it fine? Yes, sir. He's absolutely fine. Okay, move to the lecture part again. As you can see, there is a AC source connected to the base of the side of the transistor. This is BJT transistor as here and coupling with a coupling capacitor with 10 microfarad. And this is the output coupling capacitor which is connected also here. And this is the bypass capacitor that is C2. And this is the biasing voltage which you see 10 volts. Now coming towards the numerical, calculate the Miller output capacitance that is C out Miller CBC. We already know all the kind of these terms that already discussed in previous lectures. What is CBC? It is base to collector capacitance. That is a artificial or producing capacitance between the junction of base to collector that is represented by the capacitance of base to collector. The given data of AV plus 1, AV is the voltage gain which is already given in the question, that is 99. But AV is not mentioned in this numerical because the data we are extracting from the previous numerical, that is in 11-10-11, and now we are discussing the example of 10-12. So the voltage gain of the amplifier is extracted from the example 10-11. Now putting these values after calculating, we got the approximate value 2.4 picofarad. The equivalent resistance is RC parallel with RL. As you can see, the collector resistance is parallel with load resistance, and after solving the parallel combination, we got 1.1 kilo ohm. The collector AC resistance. This is
AC collector resistance. Why? Because the subscript is represented with the small letter of C of R, and here this collector resistance is the DC analysis collector value, and this is the AC analysis collector value. The difference between AC and DC is that the capital letter value is represented by the DC and the small letter is represented by AC analysis values. Now, the equivalent output RC circuit as shown is 10-38. Determine the upper critical frequency as followed by the formula. The output Miller capacitance approximate equal to the base to collector capacitance, and which is equal to that 2.4 picofarad. Uh, if anyone have any kind of query, please feel free to ask. Faraz, your mic is on. If you have any kind of query, please ask. Okay, I think there is no kind of query. No, now move on to the lecture again. We got the value 2.44 microfarad and the RC resistance that is 1.1 collector resistance that is 1.1 kilo ohm. Place all these values, calculate, multiply with the terms and take 1 divided by the answer. We got the value upper cutoff frequency and the output side is 60.3 megahertz. Now make its equivalent circuit upper critical frequency circuit, that is the AC source connected with the 1.1 kilo ohm AC analysis resistance value and capacitance value 2.4 picofarad. That capacitance is base to collector. Base to collector capacitance is cutoff frequency. Sorry, it is mentioned here output capacitance. This is the output Miller capacitance. Now, hopefully this is another related problem. This is also an assignment question which is have part B. If another transistor with the base to collector capacitance is 5 picofarad, it uses an amplifier, what is the upper cutoff frequency? That means if the base to collector capacitance value is 5 picofarad instead of 2.4 picofarad, then what will be the answer, which is mentioned, will be mentioned by calculating again that numerical with the related problem. So moving with the next topic, that is field effect transistor amplifiers. And before this topic, we are discussing about the BJT based amplifier, higher frequency response of cutoff frequency on BJT amplifiers. But now we are calculate, solve, analyze the FET amplifiers. The approach to the high frequency analysis of FET amplifier is similar to the BJT amplifier. It is same as that. The basic difference are the specifications of the internal FET capacitances and the determination of the output resistance. This is the main difference which is in FET and BJT. Shows a JFET common source amplifier that will be used to illustrate high frequency analysis. For the purpose of get the high frequency analysis, we take a common source amplifier. A high frequency equivalent circuit for the amplifier is shown in the figure. Notice that the coupling and bypass capacitors are assumed to have negligible reactances, uh, which means we are not including the reactance at this level and are considered to be shorts. The internal capacitances, that is gate to source capacitance. Before that, we are discussing the capacitance from base to collector junction and from collector to emitter junction and base to emitter junction. These are the artificial capacitances that are created between the before mentioned junctions, which I already discussed with you guys. And now we are discussing the FET based amplifiers, the capacitance of gate to source and the capacitance from gate to drain. The capacitance which is artificially created between the junction of gate to source, that is that capacitance is CGS, and the capacitance which is artificially created in between
gate to drain. That means this is the drain junction and this is gate junction. The capacitance which is created between these two junctions is the capacitance of gate to drain. And in the last, not the least, this is the capacitance of CDS, that is the drain to source capacitance. This is the output Miller capacitance in FET amplifier that we are discussing here. Now move ahead. Appear in the equivalent circuit because their reactances are significant at high frequencies. Now we are discussing the FET amplifier. This is the AC source which are connected with the coupling capacitor and gate resistance, then drain resistance, source resistance. This is the bypass capacitor, and C3 is the again output coupling capacitor, which is connected with the load resistance. Common source amplifier is represented here, and then we drive an equivalent circuit by this diagram. Here you can see by simplifying this circuit to the equivalent circuit, the source resistance is connected with the AC supply of input and gate resistance, and then the junction capacitance is created between all the three capacitances at this level, at in collect gate to drain junction, gate to source junction, and gate to sorry drain to source junction. This is the output capacitance, and these are the input capacitances artificially created in the FET amplifiers. Up till now, if any student have any kind of query, please Yes, feel sir. yes, please ask. Sir, this is the गेट फर्स्ट ये जो फर्स्ट वाली जो लाइन है सर, ये है गेट, देन सोर्स एंड देन ड्रेन. जी तो सर अभी हमने बीजेटी भी पढ़ा था और मॉसफेट भी पढ़ा था, तो उसमें भी ये तीनों चीजें बस नाम अलग हैं, चीजें सेम है. जी जी बिल्कुल, तो ये सर मैं यही है। इसमें मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से बीजेटी में एक ड्रेन, जो हमारी यहाँ पर ड्रेन जो है, वहां पे बेसिकली एमीटर होता है, तो एमीटर के ऊपर वो हल्का सा निशान बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका ड्रेन के ऊपर कोई निशान नहीं है. तो क्या इसको हम उल्टा करके भी लगा सकते हैं या एग्जैक्टली इसी कंडीशन में लगेगा? और हमें किस तरीके से पता चलेगा कि यही सोर्स है, यही ड्रेन है और यही बेस है? बेस तो चले आइडेंटिफाई हो रही है, लेकिन सोर्स और ड्रेन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है. अच्छा, इसको एनालिसिस करने का वैसे तो आसान तरीका है। फर्क सिर्फ होगा बीजेटी और एफईटी को पहचानने का। तो अगर आप इससे प्रीवियस वाला एम्पलीफायर देखें तो ये बीजेटी है। इसमें जो एरो नीचे की ये जानिब बना हुआ होता है, इससे हमें अंदाजा हो रहा होता है बीजेटी में कि ये हमारा ये एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर जो है वो एनपीएन है. बीजेटी का है। बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अच्छा, वो बात आपकी ठीक है, तो फिर इन दोनों में कैसे मवाजना होगा? असल में ट्रांजिस्टर हमेशा इस तरह नहीं होता है। ट्रांजिस्टर तो 3 पिन का होता है। अब उसमें इमेटर, कलेक्टर और बेस कहीं पे आगे पीछे दी हुई होती हैं, तो उसमें पता लगाने का मीटर के जरिए तरीका होता है। राइट सर. तो लेकिन सर उसमें एक लैग्स का भी तो होता है ना, कि लैग्स देखना पड़ता है कि लैग्स किसकी बड़ी है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखने का जो तरीका आप बता रहे हैं वो कैपेसिटर के अंदर होता है। कैपेसिटर में जिसकी लेग बड़ी होती है वो पॉजिटिव होता है, जिसकी लेग छोटी होती है वो नेगेटिव होता है। लेकिन ट्रांजिस्टर में सारी लेग्स बराबर होती हैं, चाहे वो एफईटी हो या बीजेटी हो। ओके सर. अब इसमें पहचानने का तरीका ये होता है कि एक मशहूर बड़ी बात इसमें की जाती है जो कि ईसीडी में पढ़ाया जाता है। वो ये है कि जो इमीटर होता है वो हाईली डोप होता है। इसका मतलब इमीटर के जंक्शन पे सोर्स से इमीटर पे अगर रेजिस्टेंस को मेजर किया जाए तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई आती है, जी. चाहे वाइस वर्सा कर लें। तो इमीटर इज हाईली डोप एंड बेस इज लाइटली डोप एंड अंकल. collector is लो. मॉडरेटली डोप। ये 3 टर्म्स यूज की जाती हैं। तो जिसकी डोपिंग हाई है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टेंस मॉडरेट लेवल की उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, और जो लाइटली डोप है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। तो इससे हम अंदाज़ा करते हैं जंक्शन में कि कौन सा किसका टर्मिनल है। ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से जो एनालिसिस होता है वो भी इसमें ही होता है। अब इसमें वो बात ठीक है कि जिस तरह या मैं कैसे अंदाज़ा हो
तो एफईटी में अंदाजा इस तरह होता है, जैसे आपने पहला जवाब तो उसमें खुद दे दिया कि जहाँ पे एरो डला हुआ होता है, जंक्शन वाइज पहचानने का तरीका कि ये उसकी गेट साइड होती है, और ऊपर का ड्रेन और नीचे का सोर्स ही होगा। ड्रेन साइड पे बीसीसी जो प्रोवाइड की जाती है वो आप देख रहे होंगे वीडीडी, इसे ड्रेन कॉमन ड्रेन बाइसिंग कहते हैं। अगर सप्लाई यहाँ से देते हैं तो वो बीसीसी बनती है। इसी तरीके से बीजेटी में अगर दी जाती है तो ऊपर से सप्लाई देते हैं बीसीसी, और नीचे से देते हैं तो वो वीईई होता है। ठीक है, ये भी एक मेन फर्क होता है इसमें सर्किट में पहचानने का, कि इमीटर, बेस और कलेक्टर या फिर गेट ड्रेन सोर्स किस जानिब लगा हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी जो सोर्स साइड होती है उसकी भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है बनिस्बत ड्रेन और गेट के। तो ये वो तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम पहचानते हैं एक्सपेरिमेंटल वेज में कि गेट ड्रेन सोर्स या इमिटर बेस कलेक्टर कहाँ होते हैं। और सर जरा इसका भी बता दें कि हमने जो आरजी रेजिस्टेंस ली हुई है गेट के लिए, तो ये लेना लाजमी है? अगर हम ना लें तो रेजिस्टेंस तो हमने ऑलरेडी यूज की हुई है सप्लाई के बाद। अच्छा, ये सप्लाई की रेजिस्टेंस हमने ली तो भी है, लेकिन असल में ये रेजिस्टेंस सोर्स के साथ होती है। मींस दैट कि जब ये सोर्स कपल की जाती है ट्रांजिस्टर के साथ, तो जो एक सोर्स से सिग्नल निकल के ट्रांजिस्टर पे जा रहा होता है तो उसमें जो रेजिस्टेंस या जो अपोजिशन इफेक्ट होता है उसको आर्टिफिशियली यहाँ पे लिखा जाता है, और ये आप इस तरह कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन के लेवल पे मौजूद होता है। और बाज सोर्सेस में लिखा हुआ भी होता है कि इसकी इम्पिडेंस, इसकी रेजिस्टेंस, उसके टैग लगा होता है। बाज जैसे फंक्शन जनरेटर ले लें या ऑसिलोस्कोप ले लें, उसके टैग पे लिखा हुआ होता है कि उसकी रेजिस्टेंस इंटरनल, एक्सटर्नल, और उसकी इम्पिडेंस इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, तो उससे भी अंदाजा हो जाता है इन सब चीज़ों का। तो ये फिर हम वैसे लिखते हैं। ओके ओके सर। तो ये रेजिस्टेंस लगाने का मकसद ये होता है ताकि करंट को डिवाइड किया जा सके, और एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज जो है आपके ट्रांजिस्टर को उससे बचाया जा सके। वरना अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगेंगी और करंट डायरेक्टली सोर्स से कभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो बजाय इसके कि वो यहाँ जाने के, वो डायरेक्टली जंक्शन में चला जाएगा जो कि गेट का होगा, और इससे आपका ट्रांजिस्टर खराब भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस की कॉस्ट जो है वो इतनी नहीं होती, लेकिन ट्रांजिस्टर जो आपका एफईटी का है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो बनस्बत उसको बचाने के आपका ये ख़राब हो जाए तो उसकी कॉस्ट आप बेयर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के एफईटीज बाज़ औक़ात रेयर भी होते हैं। तो इसीलिए उन मकसद के लिए एक्सेस, और इसीलिए जैसे पिछले हमने कुछ न्यूमेरिकल पढ़े तो उनमें वोल्टेज डिवाइडर पढ़ा था। ये वोल्टेज डिवाइडर भी इसलिए लगाया जाता है ताकि जो ओवर वोल्टेज हो और एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट हो उससे ट्रांजिस्टर को प्रिवेंट रखा जा सके, जो कि यहाँ की सोर्स से सप्लाई आ रही हो या एसी सोर्स से सप्लाई आ रही हो। तो उन मकासद के लिए इन रेजिस्टेंस को, इनके कॉम्बिनेशंस को हम पढ़ते हैं और यहाँ कनेक्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक इसके अलावा और अगर किसी का सवाल है बिलाल साहब के अलावा तो आप पूछ सकते हैं, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जिस तरह ये पूछ रहे होते हैं बाकी लोग भी इस तरह सवाल किया करें, क्योंकि सर कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो जनाब, हम सेशन को आई थिंक हम यही न्यूमेरिकल कर रहे थे, नहीं नहीं, बल्कि इससे ऊपर वाला कर रहे थे। पैरामीटर्स तो हमने, एक मिनट, हाँ ये तो कर लिया था हमने। हम ये एफईटी का कर रहे हैं, अब कर रहे हैं एफईटी का। यस सर। सर वो डायग्राम ऊपर निकल गई है। यहाँ पढ़ रहे थे ये हम। जी जनाब, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बताया था कि सर्किट डायग्राम जो हम यूटिलाइज करते हैं उसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर ये तो सर्किट की एक मेन स्कीमेटिक डायग्राम है। अब इसके अंदर जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट हो रहा होता है जंक्शन टू जंक्शन, इस जंक्शन से इस जंक्शन में, और गेट टू सोर्स की जानिब, वो हमारा जो आर्टिफिशियल कैपेसिटेंस का जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है और हमारे एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस और गेन के ऊपर इफेक्ट डाल रहा होता है, हम उसको एनालिसिस करने के लिए, पढ़ने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा टॉपिक इस वक्त समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं हम इसके आगे। तो फर्दर मोर फिर यहाँ पर उसके फॉर्मूले वगैरह बताए गए हैं, हम डायरेक्टली इसको न्यूमेरिकल में यूटिलाइज करेंगे, जो कि आगे एफईटी के एनालिसिस पे आएंगे। फिर इसके बाद इसमें
हमने जो मिलर इफेक्ट पढ़ा था वो बीजेटी के एस्पेक्ट से इससे पहले पढ़ा था। अब मिलर इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं एफईटी के एस्पेक्ट से। फील्ड इफेक्ट जिस तरह इसमें बताया भी गया थ्योरम अप्लाइड द सेम वे इन एफईटी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हायर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस as was done in BJT amplifier looking in from the single source. Gate to drain effectively appears in the Miller input capacitance which was given in equation this. अब आप यहाँ देखें तो इसमें जो इसको सॉल्व करते हैं हम गेट टू ड्रेन और अपना वोल्टेज गेन यहाँ पे प्लेस करके सॉल्व कर लेते हैं, तो इस तरह से हमें इनपुट मिलर कैपेसिटेंस हासिल हो जाती है। सिमिलरली अगर हमें आउटपुट की मिलर कैपेसिटेंस निकालनी हो तो हम गेट टू ड्रेन में प्लेस करेंगे, उसकी वैल्यू जो गिवन होगी हमें, और वोल्टेज गेन प्लस वन डिवाइड बाय वोल्टेज गेन करके इसको सॉल्व करेंगे तो आउटपुट मिलर कैपेसिटेंस हमें हासिल हो जाएगी। तो अब हमें जो ये कैपेसिटेंस दी गई थी ना, हम समझ रहे थे यही बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बल्कि ये खुद एक मिलर के फॉर्मूले में पुट हुई। मिलर ने इसे कैलकुलेट किया था तो उसके बिहाफ पे उसने फॉर्मूले प्रोवाइड किए हैं हमें। तो फिर हम एम्पलीफायर के सर्किट में इसे प्लेस करते हैं और फिर उसका एनालिसिस न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब इसके एक सर जी यहाँ पे जो आपने अभी बताया सी इन जो है यानी कि सी इनपुट मिलर जो है वो हमारा फॉर्मूला ये वाला है और सी आउटपुट मिलर जो है वो ये वाला फॉर्मूला है। जी जी तो यानी कि क्वेश्चन में अगर हमसे ये कहा जाए कि आपने सी इन निकाल के देनी है तो बेसिकली हमने ऊपर वाला फार्मूला ड्राइव करना है, नीचे वाला फार्मूला आउटपुट का है। जी जी, मैं कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल के अंदर जो फॉर्मूले हों वो भी प्रोवाइड कर दूं मैं, तो उससे आसानी हो जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूले कॉमन हैं तकरीबन, ये मिड में भी दिए थे, इससे पहले भी असाइनमेंट के सारे न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर ही हैं, तो ये याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं सेशन को। जी सर। अच्छा, आप अगर यहाँ देखें तो वो जो इक्विवेलेंट सर्किट हमें दिखाया गया था थोड़ी देर पहले, इसी के बिहाफ पे ये तो हमने कैलकुलेशन करी जंक्शन वाइज कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की, कि बिटवीन द जंक्शन जो आर्टिफिशियली कैपेसिटेंस क्रिएट हो रही होती है जो कि लोड के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, ट्रांस एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट डालती है ये कैपेसिटेंस, और ख़ास तौर पे गेन के ऊपर इफेक्ट डालती है। गेन इससे ख़राब होता है, एफिशिएंसी ख़राब होती है, और लोड के अंदर इससे इंटरफेरेंस भी पैदा हो रही होती है एम्पलीफायर में। तो इस इफेक्ट को ख़त्म करना ज़रूरी है, लेकिन उसे ख़त्म किया जाएगा उसको एनालाइज करके। तो उस मकसद के लिए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि इसको प्लेस करेंगे मिलर के फॉर्मूले में। तो हमने सबसे पहले वो कैपेसिटेंस जो आर्टिफिशियली क्रिएट हो रही है बिटवीन दी जंक्शन इन एफईटी और इन बीजेटी, सबसे पहले तो वो हमने मालूम करी। जब वो मालूम करी तो फिर मिलर इनपुट के फॉर्मूले में उसे प्लेस किया और मिलर आउटपुट के फॉर्मूले में आउटपुट की कैपेसिटेंस को प्लेस किया। फिर उसे इनपुट और आउटपुट की कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट करी। इस मकसद के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। फर्दर मोर अब उसी सर्किट का इक्विवेलेंट ये डायग्राम बताई गई है हमें सर्किट की। इनपुट सप्लाई प्रोवाइड की गई और हमारी सोर्स की रेजिस्टेंस कनेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे गेट की रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एंड देन हमने कैपेसिटेंस ऑफ गेट टू सोर्स कनेक्ट करी है, जो कि हमारी ये वाली थी गेट टू सोर्स। एक गेट गेट टू सोर्स जो यहाँ आती है वो अब इन्होंने यहाँ दिखा दिया हमें। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि एक ही इन लाइन कोलिनियर वे में सारी चीज़ें दिखाई जाए, बजाय इसके कैपेसिटेंस यहाँ से यहाँ करके वो दिखाते, तो उन्होंने सारी चीज़ें वो वाली भी इक्विवेलेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है। उसके बाद जो है वो इनपुट मिलर कैपेसिटेंस जो है वो तो हमारी बनी रही थी ये वाली, उसको यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि आर इन जो गेट के ऊपर इनपुट रेजिस्टेंस जो गेट के ऊपर आ रही होती है वो भी अपने लिए अब कैलकुलेट करनी होगी जब इसका हम एनालिसिस कर रहे होंगे। अ, अब ये कैसे कैलकुलेट होती है ये प्रीवियस न्यूमेरिकल में अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। सबसे पहला आज का सेशन में न्यूमेरिकल रिकॉल किया है, वो उसके अंदर ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद आउटपुट की जो कैपेसिटेंस है हमारी, जो कि सी आउट मिलर है, वो हमने यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट करी है, उसको यहाँ पे दिखा भी दिया है। एंड देन वो कैपेसिटेंस जो कि ड्रेन टू सोर्स की कैपेसिटेंस है हमारी, एक तो वो थी जो गेट टू सोर्स थी, और एक ड्रेन से सोर्स की कैपेसिटेंस है, वो भी इन्होंने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में हमें करके दिखा दिए। तो ये एनालिसिस मिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एफईटी का फिलहाल अभी कर लिया है। अब इसको हम न्यूमेरिकल पे लेके चलेंगे। और अब जैसे इन्होंने यहाँ बताया कि अगर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो उसके फॉर्मूले वाइज 1/2 पाई
सोर्स रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सी टोटल के जरिए से सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, उसे प्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें। अच्छा जी, तो न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये हमारा आज का सेकंड न्यूमेरिकल है। तो मेरे ख्याल में तो 2 सवाल या 3 सवाल असाइनमेंट के दे दिए हैं, तो 3 सवालों के लिहाज से चौथा पांचवा सवाल है जो मैं ये अब करवा रहा हूँ। फाइंड द अपर क्रिटिकल frequency of the input RC circuit of the following FET amplifier in the given circuit figure dash figure 10-42, that input source capacitance that is 8 picofarad एंड आर एस एस की जो कैपेसिटेंस है हमारी वो 3 पिकोफैरेड रिप्रेजेंट हुई है। जी एम जो है हमारी ट्रांस कंडक्टेंस कहलाती है, जो कि 6500 माइक्रो सेकेंड्स में रिप्रेजेंट की जाती है। अब उसको यहाँ पे सबसे पहले हमें ड्रेन टू सोर्स, गेट टू ड्रेन और गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो जिस तरह इससे पहले भी हमने ये आर्टिकल यहाँ डिस्कस हुआ था, ये वाला कि FET datasheet do not normally provide values for gate to source and gate to drain and or drain to source। ये डायरेक्टली कैपेसिटेंसेस हमें नहीं दी जाती, तो इनका एनालिसिस करने के लिए instead of 3 other values are usually specified because they are easier to measure। तो ये डायरेक्टली हमें दी नहीं जाती, तो उनको मेजर करने के लिए हम मजीद 3 फॉर्मूले की तरफ जाते हैं जिनके जरिए से हमें ये वैल्यूज हासिल होती हैं। The 3 other values are usually specified because they are easier to measure. These are ISS, the input capacitance, RSS, ठीक है जी, इनपुट कैपेसिटेंस आपकी ISS, और रिवर्स ट्रांसफर कैपेसिटेंस दैट इज RSS, and OSS, the output capacitance. Because of manufacturer's method to measure the following relationships allows you to determine the capacitor values need for analysis। अभी काम करने के लिए हमें यहाँ पे RSS इन्होंने बताया कि जो रिवर्स कैपेसिटेंस होती है आपकी RS रिवर्स, और S फॉर अगेन कैपेसिटेंस का लास्ट वाला S, उसके ज़रिए से आपको ड्रेन टू गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस जो वैल्यू होगी वो ऐसे ही मिल जाएगी। अब इनपुट कैपेसिटेंस और रिवर्स कैपेसिटेंस इसको माइनस करेंगे तो आपको उससे मिल जाएगी गेट टू सोर्स रेजिस्टेंस। फर्दरमोर आउटपुट सोर्स कैपेसिटेंस माइनस रिवर्स सोर्स कैपेसिटेंस को माइनस करेंगे तो आपको इससे ड्रेन टू सोर्स कैपेसिटेंस हासिल हो जाएगी। और ये 3 वो फॉर्मूले हैं जिनका जिक्र अब नीचे न्यूमेरिकल में हो रहा है। तो अब यहाँ देखें तो इनपुट सोर्स कैपेसिटेंस दैट इज 8 पिकोफैरेड, reverse source capacitance that is 3 picofarad, and the transconductance of the amplifier is 6500 macro Siemens। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सर्किट का भी एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड की गई है एसी की, सोर्स रेजिस्टेंस 50 ओम से होती हुई कपलिंग कैपेसिटर से कनेक्ट है। BDD जो कि हमारी बायसिंग ड्रेन वोल्टेज से 10 वोल्ट प्रोवाइड किया गया है, और आउटपुट वोल्टेज हमारी सोर्स से कनेक्टेड है जो कि RL और RD, और इस तरह बाय कपलिंग कैपेसिटर्स एंड देन बाईपास कैपेसिटर से ये ओवरऑल सर्किट हमारा बना हुआ है। इसको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो अभी थोड़ी देर पहले हम ये यहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट, एंड देन 2 दफ़ा यहाँ पढ़ा, तीसरी मरतबा यहाँ पढ़ा, और देन चौथी मरतबा इस सर्किट में अब हम FET का सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं मिलर इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और इसे अब फुलफिल करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट को। तो सबसे पहले डिटरमिन GD एंड GS, यानी गेट टू ड्रेन एंड गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस हमें मालूम करनी है। अभी जो मैंने 3 फॉर्मूले अबव मेंशन किए थे वो गेट टू ड्रेन बराबर होती है रिवर्स कैपेसिटेंस के, जो कि 3 पिकोफैरेड है। सही 3 पिकोफैरेड
अच्छा जी, इसके बाद जो है हम गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस निकालते हैं, जो कि कैपेसिटेंस इनपुट सोर्स कैपेसिटेंस है, माइनस रिवर्स सोर्स कैपेसिटेंस है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके डिफरेंस, ये तीनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। 5 पिकोफैरेड हमें उसकी वैल्यू हासिल हो जाएगी। अब उसके बाद डिटरमिन अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फॉर द इनपुट आरसी सर्किट एज फॉलोज। तो उस मकसद के लिए हम वोल्टेज गेन को मालूम करेंगे, जो कि ट्रांस कंडक्टेंस एंड ड्रेन रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो अगर हमारे पास, क्योंकि ये जो आर डी है वो डीसी वैल्यू, एसी वैल्यू है। एसी वैल्यू कैसे होगी? क्योंकि जो स्मॉल लेटर की होती है वैल्यूज, वो एसी एनालिसिस की वैल्यूज कहलाती हैं। तो हम एसी एनालिसिस तब करते हैं जब डीसी एनालिसिस कर चुके होते हैं। अभी ना हमने डीसी एनालिसिस किया है ना एसी एनालिसिस किया है, तो इसलिए हमें एसी एनालिसिस की वैल्यू नहीं कर सकते। उसकी वजह मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जब हम एसी एनालिसिस करते हैं तो उससे पहले हमें डीसी एनालिसिस करना होता है, और डीसी एनालिसिस की वैल्यू पुट करते हैं तो एसी एनालिसिस की वैल्यू आती है। और अभी हमने कुछ भी नहीं किया, तो इसका मतलब हम ड्रेन एसी एनालिसिस की वैल्यू यहाँ पर नहीं पुट कर सकते, जो आर डी है। तो उसकी जगह एक फॉर्मूला होता है कि ड्रेन रेजिस्टेंस पैरेलल विद लोड रेजिस्टेंस, उसको यहाँ प्लेस करेंगे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। ड्रेन रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में मेंशन है और लोड रेजिस्टेंस हमें भी क्वेश्चन में मेंशन है, 1 किलो एंड 10 मेगा। इसको यहाँ पे बिल्कुल जनाब प्लेस कर देंगे और इसका आंसर 1 किलो ओम आ जाएगा। ठीक है। तो सॉल्व करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रांस कंडक्टेंस, जो कि 6500 माइक्रोसेमेंस है। सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा 6.5, और गेन का कोई यूनिट नहीं होता। ये मालूम करने के बाद हम मिलर की इनपुट कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम करेंगे, जो कि वोल्टेज गेन अभी हमने निकाला 6.5, इसको +1 कर देंगे 7.5 हो जाएगा। और सी जी डी, जो कि हमारी वैल्यू 3 पिको फैरेड है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से 22.5 पिको फैरेड में हमारा रिजल्ट आ जाएगा सी इन मिलर के अंदर। ठीक अच्छा, है सर। इसके बाद हम आगे चलते हैं और सी इन टोटल मालूम करेंगे। तो जो सी जी एस था वो तो हमें पहले से ही गिवन, मतलब हमने निकाल लिया था कैलकुलेट करके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। वो वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस करी है, जो कि 5 पिको फैरेड हमारी आई है। उसके बाद सी इन मिलर, सी इन मिलर अभी हमने कैलकुलेट किया है, जो कि 22.5 पिको फैरेड निकला है। उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से 27.5 पिको फैरेड हमें रिजल्ट मिल जाएगा सी इन टोटल की वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू हम लेके प्लेस कर देंगे सी इन टोटल में, जो कि 27.5 पिको फैरेड है। और जो सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, क्योंकि हम इनपुट साइड में निकालेंगे, तो इनपुट साइड पे कहाँ लगती है? इनपुट साइड पर हमारी एसी सोर्स कनेक्ट होती है। तो एसी सोर्स जब कनेक्ट होती है तो उसकी रेजिस्टेंस भी एसी सोर्स वाली होगी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 ओम। तो यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं अपने मिलर इफेक्ट का, तो उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे 50। देन इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके, और हमें वैल्यू मिल जाएगी 116 मेगाहर्ट्ज की, जो कि इनपुट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। यहाँ तक होपफुली इस न्यूमेरिकल में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी जो हमने अब तक डिस्कस की है। यस सर, नहीं है। अच्छा, ये दूसरा आज का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का असाइनमेंट का, जो मैंने प्रोवाइड किया। इससे पहले 3 क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ, तो ये 5वां सवाल था जो हमने असाइनमेंट 2 का किया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे, उससे पहले बस एक फॉर्मूला डिस्कस कर लूँ मैं, जो कि जिस तरह हमने इनपुट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का निकाला है मिलर के हिसाब से, तो इसी तरीके से आउटपुट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मिलर का एक फॉर्मूला होता है, जो कि गेट टू ड्रेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर विद वोल्टेज गेन +1 डिवाइड बाय वोल्टेज गेन सॉल्व करके निकालता है। और फिर उसको, उस आउटपुट मिलर को यहाँ प्लेस करते हैं। ड्रेन, क्योंकि आउटपुट हमारा एम्पलीफायर का ड्रेन होता है और गेट एम्पलीफायर का इनपुट होता है। तो आप देखें, मैंने गेट साइड पे इसको निकाला, सोर्स या गेट साइड। जो ड्रेन साइड का एम्पलीफायर है वहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट 1/2 पाई आर डी सी आउट मिलर वैल्यू। और वो अभी हमने डिस्कस की, वो ये है सी आउट मिलर। वो ये कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद यहाँ प्लेस करेंगे, और हमारा यहाँ तक ये होपफुली न्यूमेरिकल होगा। हम ये फेस शिफ्ट नहीं निकालेंगे वहाँ पे।
अच्छा, उसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे, जो कि आउटपुट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि ऊपर वाला न्यूमेरिकल ही होगा, डिटरमिन द अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट आरसी सर्किट फॉर द एफईटी एम्पलीफायर in above mentioned figure that 10-42. What is the phase shift introduced by this circuit at the critical frequency which RC circuit dominate? That is, which one has the lower value of upper critical frequency? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ज़्यादा तको-दो नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें सी इन आउटपुट निकालना है और सी आउट आउटपुट निकालनी है हमें, दैट्स इट। इस मकसद के लिए हम लोड रेजिस्टेंस और ड्रेन रेजिस्टेंस, जो कि हमारे डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस की वैल्यू है, उन्होंने कहा कि सिंस जो लोड रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको याद होगा वो 10 मेगा ओम में दी हुई है, जबकि जो ड्रेन रेजिस्टेंस है हमारी वो 1 किलो ओम है। तो जो आपकी लोड रेजिस्टेंस है वो वेरी मच हायर वैल्यू है। तो इट कैन बी नेग्लेक्ट एट द इक्विवेलेंट आउटपुट रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी जो ये ड्रेन की वैल्यू डीसी वाली है, एसी के बराबर ही ले लेंगे वो उसके लिए। पहले क्यों नहीं किया ऐसे? पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि हम पहले सॉल्व कर रहे थे इनपुट साइड पे, तो इसका कुछ और वो भी लेना देना नहीं और था इससे। सर ये बात भी है आपकी, और दूसरी बात ये भी है कि हम जब हमने जो निकाली थी अभी हम आरडी जो हमने निकाला था वहां पे, तो हमें पहले एसी को सॉल्व करने के लिए हमें पहले डीसी को सॉल्व करना था, तो जी वहां जी पे हमने ना डीसी किया था ना एसी किया था। जी जी। और ये भी एक एक बड़ी वजह है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि हमें उसके लिए सॉल्व भी नहीं करना था, तो उससे यूज़ भी नहीं किया, और अब यूज़ कर रहे हैं तो अब उसकी इक्विवेलेंसी को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। कंटिन्यू करते हैं जनाब यहाँ से। द इक्विवेलेंट आउटपुट कैपेसिटेंस इज, दैट इज सी आउट मिलर इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ गेट टू ड्रेन। ठीक है, अब ये हम यहाँ प्लेस करेंगे, दैट इज 3 पिकोफैरेड। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये हम ऑलरेडी अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में निकाल चुके हैं। 3 पिकोफैरेड ये रहा, गेट टू ड्रेन दैट इज 3 पिकोफैरेड। ये न्यूमेरिकल उस न्यूमेरिकल से बिल्कुल मिलता है, और इसके बाद ही वो, क्योंकि इसमें हमने इनपुट फ्रिक्वेंसी निकाली है इनपुट मिलर इसमें आउटपुट कैपेसिटेंस के साथ, इसमें बिल्कुल जनाब सी आउट मिलर निकालेंगे और आउटपुट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकाल ली, तो इसीलिए ये उससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल है। अच्छा, है, उसके बल्कि बाद अगर मैं ये कहूँ कि पूरा ही न्यूमेरिकल्स एक ही न्यूमेरिकल से बस इनपुट आउटपुट अलग कर दिया हमने बस। जी जी, आप बिल्कुल सही समझे, ऐसे ही है ये, और उसकी भी पे ही हम चीज़ों को चेंज करके देख रहे हैं, और ये की न्यूमेरिकल है बिल्कुल इनपुट और आउटपुट के लिए। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हमारा वोल्टेज गेन जो कि अगेन वो 6.5 निकला, +1 करेंगे, डिवाइड करेंगे। इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में थोड़ा सा फर्क है, बाकी तकरीबन सेम ही है। वो न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें सी आउट मिलर हासिल हो जाएगी वैल्यू 3.46 पिको फैरेड में। तो अपर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इस तरीके से हम मालूम करेंगे, 1/2 पाई ड्रेन रेजिस्टेंस। ड्रेन क्यों? क्योंकि अब हम आउटपुट साइड पे निकाल रहे हैं, पहले हमने सोर्स साइड पे निकाला था तो रेजिस्टेंस थी RS। अब हम आउटपुट साइड पे निकाल रहे हैं, तो आउटपुट पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई होती है वो ड्रेन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, इसीलिए हम ड्रेन की रेजिस्टेंस को यहाँ पे प्लेस करेंगे। सी आउट मिलर जो है हमने इसलिए कैलकुलेट करा था क्योंकि फॉर्मूला जो फ्रिक्वेंसी का होता है एक्स इक्वल टू 1/2 पाई FC होता है, तो हमने सी को यहाँ करा और एफ वहाँ पे प्लेस कर दिया, तो उसी अरेंजमेंट से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। डेटा के मुताबिक सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे, और इसका जो रिजल्ट है वो 46 मेगाहर्ट्ज, जो कि एक हाई कंटेंट फ्रिक्वेंसी है एफईटी के ऑफ द आउटपुट एम्पलीफायर के अंदर। तो ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, सॉरी क्रिटिकल अपर फ्रिक्वेंसी जो हमने 46 मेगाहर्ट्ज निकाली है, वो यहाँ पे इस तरह से मेंशन करिए। ये न्यूमेरिकल यहीं तक एंड हो जाता है, क्योंकि इसका फेज शिफ्ट वगैरह की मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो बताया नहीं है, तो ये न्यूमेरिकल यहीं तक आउटपुट का भी एंड हो जाता है। भाई सर एक चीज मुझे यहाँ पूछनी थी। जी हमने जो पीछे इनपुट फ्रीक्वेंसी निकाली थी वो हमारी निकली थी 110 मेगाहर्ट्ज। जी, 116 मेगाहर्ट्ज। 116 मेगाहर्ट्ज, और जी अभी जी हमने आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकाली है तो हमारी वो निकली है जस्ट 46 मेगाहर्ट्ज। जी जी। तो क्योंकि सर जी, डिफरेंस किस किस लिहाज से, मतलब मेरी ये समझ में नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे सोर्स लगी हुई थी, वहाँ पे सोर्स लगी हुई थी, इसलिए रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पे सिर्फ आउटपुट आ रहा है, कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पे एसी की सोर्स लगी हुई थी, इसलिए
कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लोअर की ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे आपका जस्ट लोड और आउटपुट एम्पलीफायर का आ रहा है, यहाँ पे